Now we have the attitudes. Basically, attitudes की अगर हम बात करते हैं तो attitudes are like the evaluative. It's an evaluative statement, either favorable or unfavorable, concerning objects like people, events. um, like मैं ये कह सकता हूँ कि I like my job. I'm expressing my attitude about work. I have a positive attitude or I have the negative attitude. It's like the inherent perception, personality की हम इसमें बात कर रहे होते हैं. जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, यू मे गेट सिंपल रिस्पॉन्स बट द रीजन अंडरलाइंग द रिस्पॉन्स आर प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स. और हम अगर इसके अंदर मजीद अगर बात करते हैं तो वी हैव सम क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक the what are the main components of attitudes. So we can say that researchers have assumed that attitudes have three components: cognition, affective and behavior. अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि ये होते क्या हैं. कि डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग इज एन इवेल्युएटिव स्टेटमेंट. कि डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं कि फर्क जो है ये इट्स अ रॉन्ग थिंग. इट्स एन इवेल्युएटिव स्टेटमेंट. जो कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड है ये. और इफेक्ट इज द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड एंड is reflected in the statement. I like John because he discriminates against minorities. ठीक है, मैं मतलब उसको इसलिए जॉन को नापसंद करता हूँ क्योंकि वो एक माइनॉरिटीज में डिस्क्रिमिनेशन करता है. लाइक कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं. लाइक उसमें डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के काम करने वाले लोग हैं. जैसे हमने अभी बात करी थी कि जिसमें हम रेसिस के हवाले से बात कर रहे थे. हम डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैं किस तरह से मतलब इन तमाम लोगों के साथ मैनेज कर रहा हूँ, किस एटीट्यूड के साथ उनके साथ काम कर रहा हूँ. Finally, we'll discuss this issue in a considerable length. अच्छा, the behavioral component of an attitude refer to an intention to behave in a certain way towards someone or something. So it's continue. I might choose to avoid John because of my feeling about him. मैं उसको avoid करता हूँ because I don't like him. ठीक है, मेरे साथ उसका मेरा जो attitude है उसके साथ negative way में चला जाता है. Attitude made up of three components, जैसे हमने बात की, cognition, effect and behavior. And it's very helpful in understanding their complexity and potential relationship between the attitude and the behavior. अच्छा, थ्री जो ये हमने कंपोनेंट्स की जो बात करी है कॉग्निशन इफेक्ट एंड बिहेवियर की. तो these three components of an attitude are related. Employee didn't get a promotion he thought he deserved. A co-worker got it instead. तो एक ये चीज होती है कि someone got the promotion but I'm working on the same place but I think about that कि I'm capable or I'm deserving that post, but my coworker got that post and he got promoted and I'm still working at the same post. So it's basically uh, change some sort of attitude of myself कि मैं किस तरह से अब मैं मेरी वर्क एफिशिएंसी भी वहाँ पे इफेक्ट कर रही है. और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ये हम एक चीज ये कह सकते हैं कि employee attitude towards its supervisor is illustrated as follows. Employees thought he deserved the promotion. Effect को हम कह सकते हैं कि employee effect strongly dislike his supervisor and the behavior is like the employee is looking for another job. हमने जो तीन बातें करी कि एक कॉग्निशन की, एक इफेक्ट की और एक बिहेवियर की. तो कॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ये सोच रहा है कि मैं इस पोस्ट के लिए डिजर्व करता था, मुझे प्रमोशन होनी चाहिए थी. जबकि एक इफेक्ट क्या है कि नाउ आई हेट माय सुपरवाइजर और माय बॉस. और जो मेरा बिहेवियर है व्हाट इट्स लाइक कि नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. तो मैं इस तरह से मतलब जो है एक रिएक्ट कर रहा होता हूँ. We often think that the cognition causes effect, which these causes behavior. These all are the interrelated कि एक cognition create हुआ and after that उसका effect आया and they created the behavior.
either it's a positive behavior or the negative behavior. So sometimes it creates the negative might create the negative attitude or behavior. अच्छा, उसके बाद हम अगर मजीद आगे इसके अंदर अगर देखते हैं कि कॉग्निटिव इवैल्यूएशन की बात करें, कि मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं कि इट्स लाइक अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सुपरवाइजर कि गिव माय सुपरवाइजर गिव अ प्रमोशन टू अ कोवर्कर हु डिजर्व इट लेस देन मी, माय सुपरवाइजर इज अनफेयर। ठीक है, आफ्टर दैट इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं, इफेक्ट की मैं बात करूं, इट्स लाइक द फीलिंग। कॉग्निशन is the evaluation and the effect is the feeling I dislike my supervisor, उसका रिएक्शन जो आया, and the behavior is action। ठीक है, कि I am looking for another job, I have complained about my supervisor to anyone who would listen। ठीक है, मैं लोगों से कहता फिर रहा हूँ, अपने कोवर्कर से कह रहा हूँ ताकि उस तक मेरी एक ये बात पहुंच जाए या उस तक मेरी ये आवाज पहुंच जाए कि मेरे साथ जो है ज्यादती हुई है और मैं जो है इस बिहेवियर के साथ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब काम नहीं कर सकता, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर a new job। अच्छा, sometime organization in the organization attitudes are important because of their behavioral component। If worker believe that supervisor, auditor, bosses, and time and motion engineers are all in conspiracy to make employees work harder for the same or less money, it makes sense to try to understand how these attitudes were formed, their relationship to actual job behavior, and how they might be changed। ठीक है, ये एक बड़ा मतलब एक मैटर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हाउ कंसिस्टेंट आर एटीट्यूड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जैसे हम ये इसमें कह सकते हैं कि हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ पीपल चेंज व्हाट दे से सो इट डजंट कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट दे डू। ठीक है, जो वो कर रहे होते हैं वो उनके एक जिसे कह सकते हैं कि कॉल और फेल का तजाद हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक जिसे कह सकते हैं कि वो किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं कि हम मतलब हमको यकीन नहीं हो रहा होता कि परहैप्स अ फ्रेंड ऑफ योर आर कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड दैट the quality of American cars isn't up to that of the imported brands, and uh, that he never owned anything but a Japanese or German car. But his dad gave him a late model Ford Mustang, and suddenly American cars aren't so bad। क्योंकि मैं हमेशा से बुराइयां करता रहा हूँ, बुराई करता रहा हूँ कि जी अमेरिकन कार्स तो अच्छी नहीं है, आई लाइक द जापानीज और जर्मन कार्स, एंड सडनली माय फादर गिव मी अ गिफ्ट मैन अमेरिकन कार, एंड सडनली माय थॉट्स आर चेंज कि अब उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं सोसाइटी में ऐसी हो रहा होता है कि मैं किसी चीज की बुराई कर रहा होता हूँ, व्हेन आई गेट दैट थिंग तो मैं मतलब उसकी उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। तो वी कैन से दैट के एटीट्यूड्स जो हमारे कंसिस्टेंट नहीं होते। When going through a sorority rush of new freshmen believe that sororities are good and that pledging a sorority is important if she fails to make a sorority. However, she may say that okay, I recognize that life isn't all cracked up into the anyways। Evaluate statement or judgment concerning object, people or events, like कि attitudes जो है मेरे इस तरह से मतलब हो रहे हैं कि मैं किस तरह से एक मेरी feelings जो है वो change हो रही हैं। मैं जो है एक statements को evaluate कर रहा हूँ, judgment कर रहा हूँ, लोगों की judgment कर रहा हूँ, objectives की, events की, इन तमाम चीज़ों की मैं judgment कर रहा हूँ कि opinion or belief segment of an attitude, the emotional or feeling segment of an attitude, and intention to behave in a certain way towards someone or something। अच्छा, हम अगर उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस रेफर टू एनी इन compatibility that an individual might perceive to between two or more attitudes or between behavior and attitudes। अच्छा, एक इसके अंदर एग्जांपल एक हम डिस्कस करते हैं कि मिसेस स्मिथ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हर जॉब इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ हैविंग टू मेक डिसीजन दैट वुड ट्रेड ऑफ हर कंपनी प्रूव profitability against her attitude or pollution। She knows that
dumping the company's sewage into a local river, which we shall assume is legal, is in the best economic interest of a firm, what she'll do. Mrs. Smith is experiencing a high degree of cognitive dissonance because of the importance of the element. तो हम ये कह सकते हैं कि मिसेस स्मिथ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि इस इनकंसिस्टेंसी को इग्नोर किया जाए, एंड देयर आर सेवरल पाथ्स शी कैन फॉलो टू डील विद दैट डिलेमा. अब ये है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करें, कि वो किस तरह से जो है वो तमाम जो एक उन्होंने डंपिंग स्पॉट रिवर को बना लिया है टू स्टॉप पोल्यूटिंग दैट रिवर. Or she reduced dissonance by concluding that the dissonant behavior is not so important after all. I have got to make a living and in my role as corporate decision maker. ठीक है, इसमें मतलब डिफरेंट ये तमाम चीजें जो है मैटर कर रही हैं कि where the organizational implication of the theory of cognitive dissonance, it helped to predict the prosperity to engage in attitude and the behavioral change individual required by the demand of their job uh, to say or do nothing or do the things that contradict their personal attitude, that they will tend to modify their attitude to order to make it compatible with the cognition of what they have said or done. The greater the pressure is reduced. ठीक है, किस तरह से एक मैं मेरे ऊपर जो प्रेशर है मैं उस प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हूँ और किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ. इन द थर्ड क्वेश्चन, डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड? कि वी हैव मेंटेन एटीट्यूड इफेक्ट बिहेवियर. ठीक है, एटीट्यूड जो है वो बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, जब मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ है तो मेरा बिहेवियर भी जाहिर सी बात है कि चेंज होगा. कि किस तरह से जो है एक मैं कॉमन सेंस की अगर मैं बात करूं कि सजेस्ट अ रिलेशनशिप, it is isn't it logical that people watch television program that they say they like or that employee try to avoid assignment and find distasteful. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की, कि पावरफुल मॉडरेटर्स ऑफ द एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप हैव बीन फाउंड टू बी द इंपॉर्टेंस ऑफ द एटीट्यूड. It is specify an accessibility, whether they exist in a social pressure or whether a person has direct experience with the attitude. किस तरह का एक इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है रैपिडली और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है बिहेवियर के साथ उसका बन रहा है. एंड स्पेसिफिक द एटीट्यूड, the more specific in the behavior, you are more likely to remember attitude that are frequently experiences. और this may explain कि किस तरह से एम्प्लॉई जो है एक एंटी यूनियन एटीट्यूड जो है कर रहा है. सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि लुकिंग एट देयर एट वेदर और नॉट बिहेवियर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, कि किस तरह से जो है एक एटीट्यूड जो है एटीट्यूड एक एटीट्यूड बिहेवियर जो एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको दे रहा है. कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी आर्ग्यूज दैट एटीट्यूड आर यूज्ड आफ्टर to make sense out of an action that has already occurred rather than as deserve that proceed and guide action. हम ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड्स आर यूज्ड आफ्टर द फैक्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड. मतलब डिफरेंट हमारे पास जो है एक जैसे कह सकते हैं कि एक सेल्फ परसेप्शन हमारे जो है एक क्रिएट हो रहे हैं. और वी कैन से दैट के इमोशंस, इंटेलिजेंस, सेटिस्फेक्शन फॉलोड इन्वॉल्वमेंट, कि मैं किस तरह से जो है इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ. हाउ आई maintain the relationship is just as strong, particularly true attitudes and ambience when you have had few experiences regarding an attitude issues. After that we have the job. What are the major job attitudes? हम इसकी अगर बात करते हैं तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है हमेशा इस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है कि कितनी अटेंशन जो है दी जा रही है और वर्क रिलेटेड एटीट्यूड कितने पॉजिटिव हैं.
एंड अनदर थिंग इज कि जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कितना है। कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि जिससे एक अटेंशन, अट्रैक्टिंग द अटेंशन आ रहा है जिसके अंदर की, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट जिसमें हमको मिल रही होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि it can be defined as a positive feeling about one job resulting from an evaluation of its characteristics कि how much I satisfy with my job, कि मैं कितना ज़्यादा एक, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जितना मेरा बिहेवियर पॉजिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब मैं एक, जिसे कह सकते हैं कि अपनी जॉब से जो है सेटिस्फाई होऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव द पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट माय जॉब व्हाइल अ पर्सन हु इज डिससैटिस्फाइड होल्ड नेगेटिव फीलिंग अबाउट द जॉब। मैं अपनी जॉब से जब सेटिस्फाई होऊंगा कि मेरा एक एटमॉस्फेयर, मेरे कोवर्कर्स तमाम मेरे साथ काम कर रहे हैं, सही तरह से चल रहे हैं, तो आई एम आई हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और वी कैन से दैट के पॉजिटिव फीलिंग्स मेरे पास होंगी। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट, जॉब इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जॉब इन्वॉल्वमेंट में हम ये कह सकते हैं कि द डिग्री टू विच पर्सन आइडेंटिफाई विद द जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट एंड द कंसिडर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट टू सेल्फ वर्थ। कि मैं जितना सेटिस्फाई अपनी जॉब से होऊंगा, मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इतने ज़्यादा कमिटमेंट के साथ जो है काम कर रहा हूँ। इट मेजर्स द डिग्री टू विच पीपल आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकली विद their जॉब एंड कंसिडर their perceived information। लेवल इम्पोर्टेंट टू सेल्फ वर्थ, कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट दी जा रही है, कि गुड लीडर एम्पावर देयर एम्प्लॉयज बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग, देन फील दैट देयर वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड गिविंग देम डिस्क्रिशन टू डू देयर ओन थिंग, कि खुद से काम करने की उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऐसा ना हो कि मैं उनको सब कुछ कर करके दे रहा हूँ एज देयर बॉस। उनको खुद से अगर मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो इट्स बेटर कि वो परफॉर्म करें और वो सेटिस्फाई हों, और व्हेन दे सेटिस्फाई, तो वो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है एक, जिसे कहते हैं कि बढ़ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि दीज ऑल आर द इंटरलिंक्ड थिंग्स, के सेटिस्फेक्शन के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है और मेरी कमिटमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वैसी ही रहती है। कि जॉब एटीट्यूड वी विल स्टेट इन विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल्स एंड विशेस। एक कमिटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ ना, कि एक मेरा कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा, तो मैं उसके जो भी गोल्स और जो भी टारगेट्स होंगे उनको मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल अगर एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, कि एम्प्लॉय बिलीव to which they impact their work environment, their competence, their meaningfulness of the job, and the perceived autonomy of the work। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, कि जैसे साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की हमने बात की है कि किस तरह से मतलब एक, मैं इन तमाम चीज़ों को देख रहा होता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर देख रहे होते हैं इफेक्टिव कमिटमेंट, हम देख रहे होते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि एक एम्प्लॉय कि जो है एक, लाइक एग्जांपल एक गिवन है कि पेटको एम्प्लॉय में बी इफेक्टिवली कमिटेड टू द कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद एनिमल्स। उसकी एनिमल के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसकी वजह से वो एक कमिटमेंट उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। कंटिन्यूस कमिटमेंट की अगर बात करते हैं, परसीव्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोनॉमी remaining within an organization compared to leaving it, an employee may be committed to an employee because she is paid well and feel it would hurt her family to quit। नॉर्मेटिव कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, कि ऑब्लिगेशन टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मोरल और एथिकल रीजन, कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक इफेक्टिव कमिटमेंट में कि इमोशनल अटैचमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी वैल्यूज के साथ। कंटिन्यूस कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं, कि परसीव्ड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू लिविंग इट, कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, कंटिन्यू रखता हूँ। और नॉर्मेटिव कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं,
तो हम उसके अंदर देख रहे होते हैं कि ऑब्लिगेशन टू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोरल और एथिकल रीजन. Effective commitment is more strongly related to an organizational outcomes like performance and turnover that the other two commitment dimension. ठीक है, ये मतलब तमाम हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एक मेरा कमिटमेंट है, मैं किस पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ कि लाइक मैं अगेन रिपीट कि जब मैं एक पॉजिटिव वे के साथ काम कर रहा हूँ, मैं जॉब के साथ सेटिस्फाई होऊंगा तो मेरी वर्क इन्वॉल्वमेंट भी उसी तरह से होगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी मेरी उसी तरह से चल रही होगी. अच्छा, आर दीज अनदर क्वेश्चन अराइजेस कि आर these attitude really all that distinct. तो मैं इसके अंदर एक चीज ये देख रहा होता हूँ कि you might wonder whether these jobs attitudes are really distinct. After all, if people deeply involved in their job, high job involvement, it uh, isn't it probable that they like it? High job satisfaction similarly want people who think the organization is supportive, high perceived organizational support. They think that their bosses or their co-workers supports her in every situation, so he work positively. He know that he have the organizational support, also feel committed to it, strongly organizational commitment. अच्छा, हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोरिलेशन बिटवीन द परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड द इफेक्टिव commitment is very strong. The problem is that the strong correlation means that the variable may be reductant. So for example, well, if you know someone effective commitment, you basically know her perceived organizational support. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल कुछ हमारे पास जो है एम्प्लॉय एटीट्यूड मेजर्स की बात आ रही होती है कि किस तरह से जो एक एटीट्यूड सर्विस के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं. परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं कि किस तरह से एम्प्लॉयज बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशन एंड केयर्स अबाउट देयर वेल बीइंग. कि मैं किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व कर रहा हूँ, मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन कितना मुझे रिस्पॉन्स दे रही है. एम्प्लॉय engagement की अगर बात करते हैं कि इंडिविजुअल इन्वॉल्व विद द सेटिस्फेक्शन विद एंड द enthusiasm फॉर द वर्क दे डू. कितना कमिटेड होके, कितना एनर्जी के साथ वो परफॉर्म कर रहा है. एटीट्यूड सर्विस की अगर हम बात करते हैं कि eliciting responses from employees through questionnaires on how they feel about their job, work, group, supervisor, and the organization. Using attitude survey on a regular basis provide managers with valuable feedback on how employees perceive their working condition. जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो क्यों किस तरह से उनको जो है फॉलो किया जा रहा है, किस तरह से वो उसको देख रहे हैं. उसके बाद जब हम मेजरिंग जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि इट्स अ सिंगल ग्लोबल रेटिंग submission score made up of a number of job facts. The single global rating method is nothing more than the asking individual to respond to one question. हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि additional activity designed to change attitude include arranging for people to do volunteer work in a community or social service center in order to meet face to face with individual and groups. और हम इसके अंदर मजीद अगर देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट अप्रोचेस जो है इसके अंदर अप्लाई हो रही हैं कि सुपरवाइजर मेरे साथ कितना सिंसियर है. और मैं इसके अंदर एक चीज और ये देखता हूँ कि एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आउटकम इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन इज इनहेरिटली so broad that the single question captures its essence. Are most people satisfied with their jobs? It's another question. It seems that the qualified, yes, in the world is most developed countries, independent study conducted
in the past 30 years generally indicate that the majority of workers are satisfied with their job. उसकी वजह क्या होती है कि एक the percentage range is wide. More people report that they are satisfied than not. Moreover, these results generally apply to the developed countries. Developed countries में इस तरह से ज़्यादा मतलब लोग satisfy होते हैं. अगर हम अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे तो डिफरेंट इश्यूज की वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं. अच्छा, अपॉर्चुनिटीज की बात करी जाए, सुपरविजन मिल रही है, को वर्कर्स की बात करें तो एम्प्लॉय एंजॉइंग देयर वर्क और वो और ज़्यादा कमिटेड होके जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा होता है. इट दे वर्किंग इटसेल्फ इज मोस्ट ऑलवेज दैट द most strongly correlated with high level of overall job satisfaction. अच्छा, another thing is कि money also satisfy the people or motivate the people. अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी हैप्पीनेस मिलती है, एक ऐसी खुशी मिल रही होती है कि एम्प्लॉय और ज्यादा जो है कमिटेड हो रहा होता है. लॉयल्टी के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द पैसिवली वेटिंग फॉर कंडीशन टू इम्प्रूव और निग्लेक्ट किया जा रहा होता है लोगों को, और इस तरह से जो है तमाम कामों को किया जा रहा होता है.